Good morning, good afternoon, students. We are on the effect of electric current. The last time we completed about the solenoids. Now we will discuss about the force acting on current carrying conductor in a magnetic field. तो हम लोग देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट मतलब किस तरह से कितना फोर्स लगता है करंट के ऊपर, मतलब जो कंडक्टर रहता है, जो वायर रहता है. तो व्हेन द फोर्स आर गोइंग मीन्स जब करंट बोलते हैं ना पास होता है कंडक्टर के अंदर, तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर देयर, that we will see. So now just take a material like flexible copper wire, stand, electric cell, then horseshoe magnets with a strong magnetic fields. Horseshoe magnet, you know, like in a C types that you are looking on the figure 4.10. Just see in the experiment setup they given in page number 55. Now procedure, what we have to do, तो first take a stand, पहले तो stand लेना है, फिर copper wire लेना है. That copper wire that should pass to the poles. Poles means magnetic poles, they are telling horseshoe magnet they given in a 4.10 figure. देखो जैसा उसने कैसा किया है. How just see the stand taken, in the stand they put it a horseshoe magnet and from the horseshoe magnet he passes a copper wire. Copper wire उसके surrounding में किया उसने. Now connect the circuit as well as just connect the circuit. Second circuit भी अपने को connect करना है. Now whatever the whenever a current is not flowing, बोलते हैं जब current flow नहीं करने वाला है, तो what you will observe that is a figure is an A. When the current will not flow, that is as a position A. जब current पास नहीं हो रहा है तो तुम लोग ऑब्जर्व करो कि वो पोजीशन A पे है. That is A B like ना वायर टाइप, वो बोलते हैं ना स्टैंड, बोलते हैं ना कॉपर वायर है, फ्लेक्सिबल कॉपर वायर है. तो whenever a current is not air flowing, बोलते हैं ना जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इट रिमेन स्ट्रेट. जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वो क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा. बट व्हेन द करंट फ्लो, बोलते हैं ना जब करंट फ्लो होगा तो डेट यू विल ऑब्जर्व दैट इट बेंड, जो बोलते हैं ना जो वायर रहेगा वो बेंडिंग में आ जाएगा, लाइक ना वाइब्रेशन टाइप. दैट सी एज एन सी पोजिशन, सी जस्ट ऑब्जर्व means from A position what you will observe that is like in a circular type little bit when the current will flow like in a C type you are looking. But if the current direction is reverse, अगर current का direction reverse करते हैं हम लोग, तो what you will observe it flow from the bottom to the end. जो flow करेगा ना मतलब bottom से लेके end तक flow करेगा, मतलब top to end they are telling. The wire they are telling bends comes direction in the position B. जो wire रहेगा कौन से position पे आ जाएगा, A position पे आएगा. But it comes in the position. Now this means the direction of the force on the wire. What they are telling, it is always perpendicular. Whatever the wire directions is always perpendicular. जो वायर का डायरेक्शन है ना वो हर बार क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर रहने वाला है. किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, डायरेक्शन के करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट. मीन्स व्हेन द करंट फ्लो then the magnetic field will be there, that they are telling. Here the direction of the magnetic field, here you will observe the direction of the magnetic field, it is north to south. ये कैसा है, ये नॉर्थ टू साउथ. इन दिस यू विल ऑब्जर्व, दैट इज टेलिंग नॉर्थ टू साउथ एंड एच दे आर टेलिंग एज एन हॉर्सशू मैग्नेट दे आर टेलिंग. नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल नोटेड दैट व्हेनेवर करंट फ्लो अ कंडक्टर, जब करंट फ्लो करेगा तो एक तरह का मैग्नेटिक फ्लो फोर्स आने वाला है. वॉट एवर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर इन दैट फोर्स ऑन द कंडक्टर. एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो वॉट यू विल ऑब्जर्व द फोर्स ऑल्सो गेट रिवर्स. द फोर्स ऑलवेज जो फोर्स रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. एंड इफ द मैग्नेट इज केप्ट रिपेट, बोलते हैं अगर मैग्नेट को रिवर्स करता हूँ, दैट इज नॉर्थ, द साउथ पोल इज ब्रॉट टू द पोजीशन ऑन द नॉर्थ पोल. अब जो साउथ पोल है कहाँ पे लेके आ रहे हैं हम लोग, नॉर्थ पोल पे. पहले फर्स्ट नॉर्थ टू साउथ था, नाउ वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, दैट इज साउथ पोल इज ब्रॉट टू द नॉर्थ पोल. नाउ नॉर्थ पोल ब्रॉट टू द साउथ पोल एंड वॉट एवर दे आर लुकिंग, जो नॉर्थ था साउथ पे आया, साउथ था मेरा नॉर्थ पे आया. What will happen, इसमें क्या हो जाएगा. The above experiment clearly showed it. ये ऊपर से क्या पता चला, the full बोलता है ना, the above experiment force acting on the current. From this we are coming to the force is exerted on the current. Whatever the force is always on the current, that is carrying means carrying with the conductor. जो current बोलता है ना, कंडक्टर के अंदर किस तरह से करंट, कितना फोर्स कैरी हो रहा है, means when the current will pass. But the direction of this force depend on the both direction of the current. ऑन बोथ द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, जो फोर्स का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर. हाउ वी हैव सीन, वी हैव चेंज द साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ. इन द लास्ट दे आर टेलिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट विल हैपन.
तो that's they are telling means what kind of the force will be there if you will change the directions. So just see they given a copper wire straight, copper wire, that is a position of the A. Then you are looking when the current is passing, so how that you are looking the B positions, and when the current, that is B to C, when the current is passing means when the magnetic field they are telling perpendicular to the planes, always they are telling whatever the magnetic field, वो magnetic field है ना वो perpendicular रहने वाला plane के ऊपर, and going inside on the paper, बोलते हैं ना पेपर के inside में जाने वाला. Now force acting, ये Fleming left hand rules. Fleming left hand rule, first we have seen about the right hand rule. So here they are telling about the left hand rule. First the thumb you are looking force on the conductors. Force किसके पे, thumb on the conductors पे है. And the index finger you are looking direction of the magnetic fields. And the direction of the fingers on the middle fingers. So this they are telling us about force on the conductor, direction of the conductors and the direction of the magnetic fields. ये चीज़ों के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिपेंड करता है. द अबाउ एक्सपेरिमेंट, जैसे ऊपर वाले हम लोग ने अबाउ एक्सपेरिमेंट में देखे जो फोर्स कैरी करता है कंडक्टर्स के ऊपर से मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट. तो इन द अबाउ एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. ऊपर हम लोग ने देखे कि किस तरह का डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट रहता है एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वी कंसिडर दे आर टेलिंग द इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इसमें हम लोग ने क्या कंसिडर किया है ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट में, दबा एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड फ्रॉम दैट वी आर कमिंग टू नो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इससे पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है. देयर इज अ सिंपल रूल, हियर दे आर टेलिंग एज अ सिंपल रूल. दिस रूल वी आर टेलिंग एज एन व्हाट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. In this we are telling as a Fleming left hand rule. According to this, the left thumb, whatever the left thumb you are looking, that is an index. Left thumb is there, index finger is there, and the middle finger is there. They are always perpendicular when you stretch. You know when you are stretching means when you are showing a certain kind of the directions. ये तो हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो. देखो फोर्स ऑन द कंडक्टर जो थंब का बताया, इंडेक्स फिंगर बताया और डायरेक्शन ऑफ द middle fingers, current they are telling, middle fingers they are telling. So this all will always as a perpendicular. If the index finger, जो index finger बता रहा है क्या है, direction of the magnetic field है. index finger क्या बताया मेरा, direction of the magnetic field है. middle finger they are telling direction of the current and the thumb finger they are telling direction of the conductor. मतलब जो thumb finger है क्या बता रहा है, force on the conductor means on the wire how much conductor will be there, means how much force is there. How much force is there. Then the direction of the thumb they are telling. So thumb के अंदर कितना डायरेक्शन means the thumb will show which kind of the directions. As we have seen the above experiment, north and south, south and north. When we changing the direction, like we can say direction of the finger, we can say magnet. So now on the middle finger and the points, they are telling the middle fingers point in the direction of the current. जो middle finger से किसका डायरेक्शन बता रहा है, एक डायरेक्शन ऑफ द करंट का बता रहा है, और जो थंब फिंगर बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर का बता रहा है. तो दिस वी आर टेलिंग एज एन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सिंपल दिख रहे तुम लोग देखो उसमें. तो एक तो थंब बताया, इंडेक्स फिंगर बताया और मिडल करंट बताया है, सिंपल. तो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इन द अबव एक्सपेरिमेंट. वी हैव टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज मूविंग and verify your finding. We can say verify your finding, just verify where it is moving and where how much the current that is carrying. Now electric motor that you are looking here in day to day life, you are observing in daily use. We are using for the water purpose, for the different purpose we are using this kind of the electric motor in everyday life. So you know the various form of the energy. अपने को पता है अलग अलग तरह की एनर्जी होती है. दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी इन द मोटर इज़ देयर. दैट एनर्जी कैन चेंज इट फॉर्म्स. जो एनर्जी रहती है हर बार उसका फॉर्म चेंज होते रहता है. अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर. जो डिवाइस से बता रहा है क्या बता रहा है, फ्रॉम द डिवाइस दे आर टेलिंग व्हाट एवर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंजिंग इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर चेंजिंग इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, दैट वी आर टेलिंग एज एन इलेक्ट्रिक मोटर. जो डिवाइस से बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरी किस में चेंज हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं. अराउंड अस इन अवर डे टू डे लाइफ वी नो दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज़ एन अ बून.
बोलते हैं ना एक तरह सर्टन एनर्जी रहता है, मीन्स दैट मोटर प्रोवाइड अ मोर एंड मोर एनर्जी. It is used in fans also, refrigerator also, mixers, washing machines, computer, pumps, etc. These motors we are using in a different manners. ये जो मोटर्स रहती है उसका साइज़ अलग अलग रहता है और डिफरेंट मैनर्स में रहता है. हाउ दिस मोटर वर्क्स, बोलता है ना ये मोटर किस तरह से वर्क होता है. दिस मोटर ऑल्सो कैरिंग एज एन वॉट मैकेनिकल एनर्जी. दिस मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द करंट इज देयर, बट हियर ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो देयर. इसके अंदर भी एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता ही है. तो द इलेक्ट्रिकल मोटर कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप. जो इलेक्ट्रिक मोटर रहता है इसमें रेक्टेंगुलर लूप रहता है ऑफ कॉपर वायर, मतलब जो कॉपर वायर रहता है उसके नंबर ऑफ डी टर्न्स रहते हैं, रजिस्टर कोटिंग्स रहता है. एक रेक्टेंगुलर लूप रहता है, बोलते हैं ना एक रेक्टेंगुलर पार्ट रहता है और रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर क्या रहता है, कॉपर वायर की टर्निंग रहती है, कॉपर वायर के ऊपर टर्न रहता है. मीन्स एक रेक्टेंगुलर पार्ट है उसके ऊपर कॉपर वायर का नंबर ऑफ दी टर्न्स देते हैं हम लोग. एंड देन वी आर गिविंग अ रजिस्टर कोटिंग एज शोन इन द फिगर. जस्ट लुक हाउ द A B C D is there and they are showing as an what north and the south directions. Then they split, they are telling as an rings are there X and Y. XL they given and the carbon brushes. Now here just as shown in the figure they are telling between the north and the it is placed between. जो रेक्टेंगुलर लूप रहता है रेजिस्टिव कोटिंग रहती है वो कहाँ पे रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल के मिडल में रहता है. सच एज अ हॉर्सशू मैग्नेट दैट इज AB and CD. This AB and CD is in a perpendicular direction and this AB and CD is behave like in a magnetic field. ये जो AB और CD देख रहे हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. द टू एंड ऑफ द लूप, यहाँ पे जो दो एंड रहते हैं लूप के, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो X और Y, स्प्लिट स्प्रिंग बोल रहे हैं हम लोग. द टू एंड ऑफ द लूप आर कनेक्टेड एज एन हाल्व्स, दैट इज X एंड Y. बोलते हैं ना हाल्व्स में स्प्लिट, बोलते हैं ना इनको इसमें रिंग को स्प्लिट कर देता है. दिस टू हाल ऑफ द स्प्रिंग हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग एंड दिस हैज़ अ रेजिस्टिव कोटिंग इनर सरफेस, उसके अंदर सरफेस पे रेजिस्टिव कोटिंग रहते हैं. एंड द टाइटली फिटेड, बोलते हैं ना एकदम पूरी तरह से टाइट फिट रहता है एक्सेल के ऊपर. नाउ दिस टू हाल्स, बोलते हैं ना जो स्प्लिट स्प्रिंग रहती है X और Y की, उसके ऊपर आउटर कोटिंग बोलते हैं ना आउटर कंडक्टिंग सरफेस रहता है. बाहर भी बोलते हैं ना एक तरह का वायर का सरफेस रहता है. इन कॉन्टैक्ट विद दी टू स्टेशनरी कार्बन्स, वो किसके कॉन्टैक्ट में रहता है, कार्बन के कॉन्टैक्ट में रहता है, जो तुम लोग E और F देख रहे हो इन द ब्रश. व्हेन द सर्किट इज कम्प्लीटेड, जब बोलते हैं ना जब सर्किट कंप्लीट होता है शोन इन द फिगर, जो तुम लोग देख रहे हो फिगर में. हाँ, द करंट फ्लो इन द ब्रांच, जो करंट फ्लो होता है मेरा AB से फ्लो होता है फ्रॉम द लूप. जो लूप मतलब नंबर ऑफ टर्न रहता है कॉपर्स का. हाँ, फ्रॉम A to B वो कहाँ पे फ्लो होता है, फ्लो होते होते EF पे जाता है. थ्रू द कार्बन ब्रशेस, जो कार्बन ब्रशेस देख रहे हैं हम लोग EF. तो कार्बन ब्रशेस तुम लोग देखे होंगे डे टू डे लाइफ में. तो ये कार्बन ब्रशेस E to F में देखते हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो इसका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रहता है. पहले नॉर्थ पोल बता रहा, दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. हियर ऑल्सो द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज कमिंग. यहाँ पे भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रहता है. तो एक जो बोलता है ना जो फोर्स एक्सर्ट होता है AB पे, वॉट एवर द फोर्स इज कमिंग दैट फोर्स इज पुशिंग डाउन. वो फोर्स कहाँ पे जाता है, डाउनवर्ड में जाता है. मतलब AB से CD पे जाएगा, CD से वो हाल पे जाएगा कार्बन ब्रशेस पे EF पे, रिंग के ऊपर जाने वाला है. द करंट इन द CD ब्रांच, बोलते हैं जो CD का ब्रांच जो AB के ऑपोजिट है, मैंने जैसे बताया. हाउ आई टोल्ड यू द इट इज़ AB ऑपोजिट ऑफ CD. देयरफॉर जितना भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, बोलते ना ये डाउन AB अगर डाउनवर्ड में है तो CD मेरा अपवर्ड में रहेगा, और अगर ये बोलते ना AP अपवर्ड में है तो CD मेरा डाउनवर्ड में रहेगा इन दिस डायरेक्शन. दैट लूप एंड द एक्सेल स्टार्ट, बोलते हैं ना जो लूप और एक्सेल है वो क्या करेगा, बोलते हैं ना रोटेट, इट विल रोटेट लाइक एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो कैसा उल्टा रोटेट करना चालू करेगा. एंड आफ्टर हाफ रोटेशन मीन्स वंस द हाफ रोटेशन विल कंप्लीट द टू हाल, जो बोलते हैं ना जो हाल्स है X और Y का, वो एक दूसरे के बोलते हैं ना कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे. दे विल कम इन द कॉन्टैक्ट, स्प्लिट स्प्रिंग के जो X और Y है, दे विल कम इन द कॉन्टैक्ट विद द कार्बन ब्रशेस, किसके कार्बन ब्रशेस के कॉन्टैक्ट में आएगा. एंड द करंट इन अ लूप स्टार्ट, वॉट वो जो करंट मेरा है कहाँ पे जा रहा है, करंट मेरा लूप में जा रहा है, कॉपर वायर के लूप में जा रहा है. एंड दे आर फ्लोइंग द डायरेक्शन DCBA. वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, अभी DCBA फ्लो कर रहा है. पहले AB मेरा ऑपोजिट के CD में था, अब ये रिवर्स हो जाएगा DCBA में जाएगा.
ना फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच, जो फोर्स मेरा एक्सर्टेड था, जो डीसी मेरा क्या ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, पहले CD उसने अपवर्ड डायरेक्शन में बताया था ऑपोजिट में, अब यहाँ पे DC मेरा क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द ऑपोजिट ऑफ BA अपवर्ड डायरेक्शंस। अब BA मेरा क्या हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। व्हाट वर द लूप, हियर द लूप कंटिन्यू, यहाँ पे लूप कंटिन्यू बोलते हैं ना, जो लूप रहेगा वो रोटेशन में होते ही रहेगा, मीन्स इट विल रोटेट लाइक एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। एंड व्हाट वर द करंट इन द लूप, जो करंट जो लूप में है ना वो क्या होगा रिवर्स होते ही रहेगा हाफ रोटेशन में, और जो लूप रहेगा ना एक्सल बोलते हैं ना वो कंटिन्यू होते ही रहने वाला है रोटेशन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कमर्शियली मोटर रन्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, जो मोटर रहता है ये भी सेम प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो सेम प्रिंसिपल में रन होने वाला है, सेम माइनस में रन होने वाला है। बट प्रैक्टिकल बोलते हैं ना उसमें प्रैक्टिकल चेंजेस आते रहते हैं कंस्ट्रक्शन में, एंड यू विल लर्न दैट लेटर, तुम लोग को पता चलेगा बाद में। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स दिस थिंग्स।